हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक होंगे। आप इस समय घर पे रह रहे हैं, घर पे रह करके ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस लेने के साथ आप लोगों के असेसमेंट, आप लोगों के जो इवेल्युएशन वो भी साथ के साथ हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, you know that right now you all are the COVID warriors. Every time, whenever the some kind of a very huge problem is come, at that time you are trying to cope up with that problem, trying to fight with that problem. In the same way, this pandemic come. In this pandemic, you are following the rules and regulations of the COVID-19. With this wish, let me introduce myself. This is Virendra, your information technology teacher, and I am here to give you the most important lecture based on Java programming. Students, as you know that your basic part is over now, and in the basic part, what you have learned, your if else statement, repetitive structure, selection structure, right? What is operator, how many kinds of operator, how we are going to write the Java programs, each and everything you have learned in the previous videos. Also, you have learned the basics of all for Java programming. But now students, you have learned the Java basics, and now it's time to study the advanced version of Java. Right now we are going to have a most important lecture to be started from this video, that is object oriented programming, and this is also called OOPS, right? So students, from this video you have to watch carefully each and everything. Whatever the queries you have, whatever the questions you have, definitely you have to interact with me, you have to communicate with me, so that I can resolve your problem as early as possible. But I want a commitment from your side that definitely you will able to watch the full video, don't skip anything. And if you want to share this video to any of the friends, you can share. Okay, your likes, your comments, your suggestions, everything is welcome here. ओके, सो इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है? इस वीडियो में हमें ये समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पढ़ते क्यों हैं, क्यों हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आने वाले समय में या आने वाले हम जावा प्रोग्राम से जब आगे बढ़ते जाएंगे, किस तरीके से प्रोजेक्ट को बनाने हैं, क्या करना है उसके लिए, ठीक है? बहुत सारी बातों को हम एक एक करके हम यहाँ डिस्कस करेंगे. Okay students, now I am going to start the class. In today's class, as you know that we have to study about basics of class and object in Java programming. Students, as you know that class and object, this is the main content which is used in Java programming. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग में अभी तक जितना भी आपने पढ़ा वो सब कुछ आपका एक बेसिक से रिलेटेड था. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी हियर, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, राइट? So let's start our class. First of all, we'll try to understand what is class, what is object. So I'm taking here one example here, and by using that example we'll try to understand it. Okay, so I'm taking the real world example here. Okay, suppose first we talk about the class. Okay, just read go through the line which is already marked with a pencil. Okay, so first of all we have to discuss about class. Class is nothing but
इट इज़ अ ब्लू प्रिंट फ्रॉम विच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं या क्रिएट करने वाले हैं उसी का ब्लूप्रिंट वही कहलाएगा क्लास। अब मैं थोड़ा इसको मैं एग्जांपल ले करके मैं समझा देता हूँ। मैं सपोज you want to make a car, then first of all you want the blueprint of that car so that you can design or you can say define and check how it look like। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आप एक कार बनाना चाहते हैं आप, और कार बनाने के लिए सबसे पहले आपको कार का जो ब्लूप्रिंट है, जो कार का जो डिज़ाइन है, ठीक है, वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसी ब्लूप्रिंट की हेल्प से हम जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ बनाएंगे हम, राइट। अच्छा, तो अब आप ये मान के चलिए कि कार हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप ऐसा कहिए कि कार एक हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, एक हमारा क्लास है, ठीक है। कार एक हमारा एक ऐसा क्लास है। हम दोनों चीज़ कंपेयर करते हुए देखेंगे हम। वी आर एज्यूमिंग हियर कार इज़ नथिंग बट इट्स अ वन काइंड ऑफ क्लास, राइट। नाउ as you know that in car there is 3 or 4 functions are main functions are there. Likewise, if we talk about the clutch, okay, it is used to change the gear of the car. Brake, it is used to slow down the speed, or you can, if you want to stop the car, you can do that. Accelerator, okay, it is nothing but it's give increase the speed of the car, right. It is used to increase the speed of the car, right. So these are the main methods or functions, right. It means that if you want to assume that car is the class, right. So according to that, inside the class we have to explain, we have to declare the methods, or you can say functions, okay. Now when you are trying to access this function, how we are going to do that? Suppose you are the person who become the object, and without you can't use any of the clutch, any of the brake, any of the accelerator. Without you can't be accessed here. So that in the Java programming, without object you can't access your class, you can't access your method which is declared inside the class, okay. So next line says that to access these functions we require an object. Yes, if you want to access any of these function we require an object. So by using the class object we can access the class, right. Let me take one example here. I have declared class. Class is the one kind of keyword, and here the word car is the one kind of name of the class. Then I use the curly bracket. Then after I have written here I have to mention the structure of car here. Then inside the class I have to mention the methods, what are the methods are there. Inside the method I have to written each and every step, then close the curly bracket, and again you have to close the curly bracket, right. Now using the class object we can call the method, okay. If you want to use the method or function, definitely you have to use the methods, right. So students, अब आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हमने कार को एक ऑब्जेक्ट हमने मान लिया, और कार को ऑब्जेक्ट मानने के बाद हम उसके फंक्शंस बना दिए। अब फंक्शंस बनाने के बाद अब उन्हीं फंक्शंस को या उस क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं, तो बिना ऑब्जेक्ट के यानी बिना आपके वो एक्सेस नहीं होगा। तो हमें उस क्लास के फीचर्स को या उस क्लास के फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए ही हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया,
कि मेन जो डेफिनेशन है कि ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। ये किसके लिए है? ये फ्रॉम विच द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है, जिसके लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम क्या करते हैं, हम अगले पेज पे आते हैं और अगले पेज पे इसका जो बेसिक्स है वो हम और भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, few seconds back we have able to understand that what is class and how the class is look like, right? And after that we have understand little bit about the object. Okay, so what the object is? Object, the full form is object oriented programming, and the main purpose for object oriented programming, मतलब क्या हुआ कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेन पर्पस की बात करते हैं हम, तो मेन पर्पस का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर रियल वर्ल्ड के जो एंटिटीज़ हैं उनसे डील करने की बात कर रहे हैं आप, उनसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनसे आप यूज़ करना चाहेंगे आप, ठीक है। सो आई मीन टू से वट एवर द प्रॉब्लम दैट इज़ देयर इन अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है, और रियल वर्ल्ड एंटिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से आप उसको दूर करते हैं आप, इसीलिए ऊप्स को बनाया गया है, ठीक है। अब ऊप्स के जो मेन फीचर्स हैं, मेन फीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्लास 12 के हिसाब से हमें जो है केवल दो ही चीज़ें देखना है, क्लास और ऑब्जेक्ट, राइट। इसके जो और भी फीचर्स होते हैं मैं थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में बता दूंगा आपको मैं, जैसे इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। इन सब के मैं डिटेल तो नहीं जानेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा होता क्या है ये, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वन मोर टाइम आई जस्ट वांट टू गिव यू द डिटेल्स अबाउट द सेम, दैट वेन एवर we talk about the purpose of object oriented programming, it means that the real world entities which is going to be solved with the help of programming language. अब रियल वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मान लीजिए मुझे अगर कोई कार ही बनाना है अगर, या मुझे कोई रोबोट ही बनाना है अगर, तो रोबोट ऐसे थोड़ी बन जाएगा, उसके लिए बाकायदे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना करके, छोटे छोटे यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट बना करके हम उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। आने वाले वीडियोस में मैं आगे आपको बताऊंगा मैं कि किस तरीके से क्या क्या हमें करना होता है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं हम कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, व्हाई इट इज़ मेड, what is the reason behind to made this object oriented programming. So before object oriented programming, the procedural oriented programming is there. स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो को कहीं भी आप स्किप मत करिएगा। रीज़न, क्योंकि ये जो बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बेसिक्स बुक में नहीं दे रहे कि आपको मिलेंगी, ठीक है। ये आपको मेरे वीडियो पे, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिलेगा, ठीक है। सो मैं आपको ये बता रहा था कि व्हेन यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, द प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, द प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ बिल्ट फर्स्ट, then the oops come. It means that there was some problem in procedural oriented language, isn't it? Yes, in the procedural oriented programming language there was some problem, right? So let's have a little bit detail about that, and then we'll have the comparison between the same, ठीक है। दोनों के बीच में हम कंपैरिजन भी देखेंगे कि क्या क्या कंपैरिजन हो सकते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ओके। Now, first of all, we'll take what is procedural oriented language, right? ठीक है। Come to the second line. In this, program is divided into small parts called functions. मतलब क्या हुआ कि जब आप अपने प्रोग्राम को बनाते हैं आप प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज की हेल्प से, तो अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पार्ट को आप कहेंगे फंक्शंस,
ठीक है। प्रोसीजर्स को हम फंक्शंस कहें, रूटीन्स कहें, सब रूटीन्स कहें, सब एक ही चीज़ है ये, ठीक है। प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स टू बी कैरीड आउट। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर जितने भी हमारे स्टेप्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप उस फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं आप। और फंक्शन कहाँ पे है? फंक्शन आपका जब आप यहाँ पर बात करते हैं प्रोसीजर में, तो प्रोसीजर के अंदर है यहाँ पर, ठीक है, फंक्शन के अंदर है यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? यहाँ पर ये कहेंगे इट इज़ द प्रोग्रामिंग मॉडल। ये एक तरह का प्रोग्रामिंग मॉडल है ये, which is derived from structural programming based upon procedures। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्रोसीजर्स पर आधारित है, और ये जो प्रोसीजर्स हैं इन्हीं को हम फंक्शंस कहते हैं, रूटीन्स कहते हैं, ठीक है। एक प्रोग्रामिंग मॉडल है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे सी, बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल। बेसिक का एक फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। फोर्ट्रान का फॉर्मूला ट्रांसलेटर। कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। ये कुछ फुल फॉर्म से ये। सो यहाँ पर अब आपने इतने पैराग्राफ में केवल आपने एक चीज़ जाना कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज होता क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज इन विच वी आर गोइंग टू मेक द प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर्स, with the help of functions, and inside the function we are just going to write the series of computational steps, okay, which will be carried out later on. Now come to the object oriented part. It is the programming model, it also a programming model based on object। yes, यानी कि आप जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं जिसमें कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड है, वहाँ पर तो प्रोसीजर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अब आपका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। इन दिस प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड होंगे उनको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जावा, जिसको कि हम इस समय पढ़ रहे हैं हम, C++, सी शार्प, पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट, रूबी, पर्ल, स्विफ्ट, डार्ट। ये जो एग्जांपल्स मैंने बताए हैं ये सब हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स कम टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए अब आप प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज में लेफ्ट साइड में देखेंगे प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, और राइट साइड में देखेंगे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। देखिए इट फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। मतलब क्या हुआ कि जब आप यहाँ पर प्रोग्रामिंग का कंपाइलेशन स्टार्ट होगा यहाँ पर, तो टॉप डाउन अप्रोच इसमें फॉलो होता है, और यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। यहाँ पे यानी कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हमें टॉप डाउन बॉटम का अप्रोच करना पड़ता है। यहाँ बॉटम, जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे या BCA MCA जब करेंगे आप, तो वहाँ पर इन सब अप्रोचेस के बारे में आपको बताया जाएगा आपको, ठीक है। नाउ देयर इज़ नो एक्सेस स्पेसिफायर। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम में पब्लिक का इस्तेमाल करते हो, प्राइवेट का इस्तेमाल करते हो, प्रोटेक्टेड का इस्तेमाल करते हो, तो ये सब तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक्सेस स्पेसिफायर हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है इस तरफ, ठीक है, कि यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड होते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड का इस्तेमाल हमने कम देखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम प्राइवेट और प्राइवेट के अलावा हम पब्लिक का इस्तेमाल करते हैं अपन मेन फंक्शन के लिए ही। ये देखिए हम यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 को देखिए, एडिंग न्यू डेटा एंड फंक्शन इज़ नॉट ईजी।
यानी कि अगर आप प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज में यहाँ पर अगर आप कोई न्यू डेटा या कोई फंक्शन ऐड करना चाहें तो ईजी टास्क नहीं होगा, थोड़ा टफ होगा वो। लेकिन यही काम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आसानी से हम कर लेते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ लेस सिक्योर एंड नो प्रॉपर डेटा हाइडिंग। अब कभी कभी हमें डेटा हाइडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो जो डेटा हमें यूज़र को नहीं दिखाना चाहिए वो भी हमें दिखाना होता है कभी कभी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो डेटा हाइडिंग की फैसिलिटी आपको प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज में नहीं मिलेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको डेटा हाइडिंग की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी और ये मोर सिक्योर है ये। ठीक है, नाउ अब आते हैं यहाँ पर 5th पॉइंट पे, फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पर अगर एक फंक्शन से कई सारे काम लेना चाहें हम, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इट इज़ पॉसिबल, राइट। नाउ कम टू द 6th पॉइंट, फंक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द डेटा। यस, प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज में फंक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा में, लेकिन यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट होगा, डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका अपने फंक्शन से। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के बाद उसको यूज़ करते हैं क्लास को एक्सेस करने के लिए, तो वहाँ पर मेमोरी एलोकेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपने फंक्शन बना रखा है उस फंक्शन में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाए, मेमोरी स्पेस कैप्चर हो जाती है। ठीक है, और तो उस डेटा के लिए ही तो आपका यहाँ पर मेमोरी स्पेस कैप्चर हुई है, तो यहाँ पर इसलिए डेटा यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन फंक्शंस। ठीक है, कम टू द 7th पॉइंट, इट इज़ बेस्ड ऑन अनरियल वर्ल्ड। मतलब ये हुआ कि सी जो आपका हो गया या फिर फोरट्रॉन हो गया, पास्कल हो गया, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सॉर्ट आउट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादा जो सॉर्ट आउट नहीं करती हैं ये, लेकिन यहाँ पर प्योरली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ही आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाया गया है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि इन डिफरेंसेस की हेल्प से अब आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको पता चल गया होगा। So students, right now with the help of these differences you are able to understand that why the object oriented language is going to be used here, right? So let's have little bit more about your class and object. As you know that the class is the one kind of logical entity. आपको बताया था कि जो क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट के बारे में बताया था कि ये एक आपका किसी भी क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट का ये आपका ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसीलिए जब हम क्लास की बात करते हैं हम, सो इनसाइड द क्लास वी आर जस्ट गोइंग टू राइट द मेथड्स एंड फंक्शंस, ओके, एंड whenever you are declaring the object you are trying and then you are trying to access the memory allocation is done, but whenever it is declared the memory allocation is not done। मतलब क्या हुआ कि जब हम क्लास को यहाँ पे देखिए लिखा है क्लास में फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ लॉजिकल एंटिटी, ये एक लॉजिकल एंटिटी है वेयर वी डिफाइन द लॉजिक। यानी कि क्लास हमने डिक्लेयर किया है, कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं हो, चाहे जितनी क्लास डिक्लेयर कर लीजिए आप। ठीक है, और वही जो क्लास डिक्लेयर किया है उसी के अंदर आप अपने लॉजिक को डिफाइन करेंगे आप। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट में देखते हैं, व्हेन वी डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी क्लास देन इट विल टेक ए मेमोरी स्पेस फॉर दैट। I have already told you whenever you are declaring any kind of class and you are trying to access its features, its methods or function, you are going to use the object. So whenever you are going to use, the memory allocation is done, right? Okay students, now it's time to come our next page and then we'll have the more about the content, right? Now students, अब हम थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कि जो क्लास है उस क्लास का सिंटेक्स क्या हो सकता है। एक तो हम ये समझेंगे आने वाले इसमें पेजेस में, और हम ये समझेंगे कि हम जब क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसका जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ओके, चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। अब आप देखते हैं जब आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके हम यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट्स हैं, जो स्थितियाँ हैं उसको हम जानते हैं या उसके बिहेवियर के बारे में पता कर लेते हैं।
अब स्टेट्स क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप स्टेट के बाद सकते हैं एज हो सकता है, कलर हो सकता है, बिहेवियर में जैसे आप ईट खाना खा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके बिहेवियर से काउंट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप स्टेट को अगर आप बताना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप जो वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं उनका हम यूज़ यानी वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। तो अब आपने लिखा इंट ए का मतलब अगर उस क्लास के अंदर आपने बता रखा है तो एक ऐसा वेरिएबल है जो उस क्लास के बारे में आपको बताएगा। लेकिन अगर उसके मेथड्स को, उसके फंक्शंस को अगर आप एक्सेस करना, उसको बताना चाहते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ अब हो तो जाएगा ये, ठीक है, लेकिन आपको ये बिहेवियर बताएगा। Okay, so the meaning of this diagram is that if you want to show the state, then you should use the variables, and if you want to show the behavior, then you should use the methods or function, right? So object always shows two things, state and behavior, right? So that's why we can say that the class is nothing but is a collection of object. देखो यहाँ लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास, ठीक है। और एक क्लास के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट को भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम बता रखा है कि याद रखिएगा कि जो क्लास है वो एक लॉजिकल एंटिटी है और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक फिजिकल एंटिटी है। दोनों में आपको ध्यान रहे, यानी फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ऑब्जेक्ट जो है फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्लास है वो फिजिकल नहीं होता है, केवल वो लॉजिकली एंटिटी है, लॉजिक के द्वारा उसको बताया जाता है, ठीक है। चलिए, अब इतना करने के बाद अब हम आते हैं अपने पुराने टॉपिक पे, जिसमें कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देंगे आपको, ठीक है, कि होता क्या है ये। चलिए बात करते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने यहाँ पर कोई क्लास बताई, ठीक है, अब आप उसको एक्सेस, उसके जो फीचर्स हैं, मेथड्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो जब आप उसको एक्सेस करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके जो फीचर्स हैं वो आपके अंदर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं इनहेरिट होना, ठीक है। इसका मतलब ये हो कि उनके फीचर्स को आप बार बार रीयूज़ करें, आप अपने सोर्स कोड में इनहेरिट के मदद से आप उसको कई बार रीयूज़ कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। So inheritance is the feature of object-oriented programming which gives the facility of reusability of the source code, right? So whenever you are declaring the class, at the declaration time and at the creation of logic, whatever the features, whatever the methods are declared, that going to be used again and again. That's why this is called reusability, and reusability comes under inheritance, right? So students, I hope each and everything is clear. Now it's time to move to our polymorphism. पॉली मीन्स मैनी, आपको पता ही होगा। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं यहाँ पर कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। वी हैव एन ऑब्जेक्ट बट इट हैज़ डिफरेंट और यू कैन से मैनी बिहेवियर। आपको पता ही होगा पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट है लेकिन उसके जो बिहेवियर्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। मॉर्फिज्म मतलब बिहेवियर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि राइट नाउ आई एम टीचिंग यू एंड करेंटली आई एम योर टीचर, but when I reach at home, I'll become your brother, husband, son, uncle, anything. So I have many different kinds of role and different kinds of behavior, right? So that's why this kind of feature is known as polymorphism. Encapsulation. Now next topic is encapsulation. Okay, तो आपको यहाँ पता है कैप्सूल एक वर्ड यहाँ दिख रहा होगा आपको, कैप्सूल। इनकैप्सुलेशन में कैप्सूल आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके डेटा हैं, जो आपके मेथड्स या फंक्शंस हैं, उनको बाइंड करने का काम करता है। इनकैप्सुलेशन एक ऐसा फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जिसमें कि हम डेटा और मेथड्स दोनों को बाइंड कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इस डेटा इनकैप्सुलेशन के बाद कि अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो हमारा क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। चलिए देखिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है छुपाना, हाइड करना। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा हाइडिंग की फैसिलिटी है, यानी कि जब कोई यूज़र अपने कंटेंट्स को देखता है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो अनसिक्योर चीज़ें हैं, तो अगर हम नहीं दिखाना चाहते हैं तो हम नहीं दिखा सकते,
ठीक है, इस फीचर को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करना होगा एब्स्ट्रैक्शन फीचर को हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्लास, अब हम वापस आते हैं जिसमें कि हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में जानेंगे हम। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में जानेंगे हम। चलिए, अभी तक मैंने क्या बताया है कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ये बता दिया। फिर इसके बाद बताया क्लास एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब हम बात करेंगे, इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, यूज़र द्वारा, यानी कि जब आप क्लास और क्लास नेम डिफाइन करते हैं तो यूज़र अपने मन से डिक्लेयर करता है, इसलिए इसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं हम। विच होल्ड्स ओन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर C++ का जो लॉजिक है तो उसकी हेल्प से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर आप कि क्लास को ब्लूप्रिंट कहिए या क्लास को फिजिकल एंटिटी ना कहिए, ठीक है, ये दोनों बातें सही हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ये भी आप समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर जो क्लास है एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी हो सकता है। ये C++ के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, जिसकी कि मैंने जावा में समझाने की कोशिश की है यहाँ पर, तो दोनों को अलग अलग आप बिल्कुल समझ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हम। इट इज़ द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच होल्ड्स ओन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। ठीक है, कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। अब डेटा मेंबर क्या होता है कि जो डेटा आपने क्लास के अंदर बनाया है उसे हम डेटा मेंबर कहेंगे, और जो मेथड्स आपने बनाए हैं आपने क्लास के अंदर उसे हम बोलेंगे मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो अब आप इन सब बातों को याद रखिएगा। और अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा। मैंने आपको पहले बताया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास, एक इंस्टेंस मीन्स उदाहरण है। सो व्हेन एवर अ क्लास इज डिक्लेयर्ड, जब हम क्लास को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, नो मेमोरी एलोकेशन इज डन, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग दिस, बट व्हेन यू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट, व्हेन यू गोइंग टू एक्सेस द फीचर्स ऑफ द क्लास, देन एट दैट टाइम योर मेमोरी एलोकेशन इज डन, right? Now, one more few important points are there. All the objects from the single class share same behavior and state. मतलब क्या हुआ कि जब हम एक क्लास बना देते हैं, उस क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो अपने बिहेवियर और अपने स्टेट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो फिजिकल एंटिटी की तरह होता है, लॉजिकल एंटिटी आपका क्लास होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ क्रिएट करते हैं तो रन टाइम पे ही क्रिएट करते हैं आप। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे हम देखते कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब बारी है इस समय एग्जाम्पल्स की, और एग्जाम्पल्स को देख करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो आपके यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, जो क्लास है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको यूज़ कैसे करना है उसको हमें समझना है। ठीक है, चलिए देखिए। सो हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, देखिए सिंटेक्स देख लीजिए पहले इसका। पहले आपने क्या लिखा, क्लास नेम लिखा, क्लास नेम के बाद कोई भी वेरिएबल आपने लिख दिया, इक्वल टू का साइन लगाया, न्यू एक ऑपरेटर है यहाँ पर, क्लास नेम आपने लिखा, जो भी आपने क्लास नेम रिपीट किया था, फिर इसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पर पैरेंथेसिस और उस पर लास्ट में सेमीकोलन। अब क्लास नेम ये तो यूज़र डिफाइन होता है, जो क्लास का नेम होगा वो यूज़र डिफाइन होगा। फिर यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल, जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे वो एक रेफरेंस वेरिएबल होगा आपका। रेफरेंस वेरिएबल मतलब ये कि आप एक ऐसा वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं जिसको कि आप एक ऑब्जेक्ट की तरह बाद में कंसीडर करेंगे और उसी की हेल्प से क्लास को एक्सेस करेंगे आप। न्यू एक ऑपरेटर है जिससे कि मेमोरी एलोकेशन होती है। ठीक है, और जो क्लास नेम जिसको कि एक यहाँ पर आपने यहाँ बताया है और पैरेंथेसिस लगाया, ये जो मेथड होता है ये एक तरह का फंक्शन डिक्लेयर करने का तरीका है। इसे ही हम कंस्ट्रक्टर बताते हैं। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हुआ कि एक जो क्लास का नाम आपने दिया है, अगर आपने वही नाम फंक्शन के नेम के लिए भी दे दिया तब आप कहेंगे ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इसका काम क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को असाइन करता है। यानी कि अगर आप जब वैल्यूज़ इनपुट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इंट में जो इंटीजर होते हैं 0 असाइन हो जाएगा, अगर आप स्ट्रिंग लेंगे तो नल वैल्यू वहाँ पे असाइन हो जाएगी। ठीक है,
आपको यहाँ पे सीक्वल में अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बताया गया होगा। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। हम इसकी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब जो लेफ्ट साइड में आपने देखा क्लास नेम और वेरिएबल, ये तो आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए होता है, और जो आपका राइट साइड में दिख रहा है ये आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए होता है। यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक लिखा है स्टूडेंट, एक क्लास का नाम लिखा है S1। तो S1 क्या है यहाँ पर? एक वेरिएबल नेम, एक रेफरेंस वेरिएबल है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा इंट मार्क्स, तो जो आपने मार्क्स जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो इंट टाइप का है। इसी तरह से जो S1 वेरिएबल है वो स्टूडेंट टाइप का है, आपका वेरिएबल है, आपका रेफरेंस वेरिएबल है ये। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से मार्क्स इंट टाइप का वेरिएबल है, उसी तरीके से जो S1 है वो आपका स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। न्यू मैंने बताया था एक मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है, और ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिंटेक्स हो गया यहाँ पर, और इसको आपने यूज़ भी किया है कई सारे प्रोग्राम्स में, आपको बताया गया है ये। ठीक है, जब वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं तो उस समय मैंने आपको बता रखा है कि कैसे यूज़ करना है। आपको एक java.util. स्कैनर इसको आपको यूज़ करना होता था, और इसके बाद आपने वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते थे, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते थे आप, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं हाउ टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट विच इज़ क्रिएटेड इन मेमोरी। अब हम बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वो आप उसी का यूज़ कर रहे हैं आप, तो जब क्रिएट हो जाएगा तो उसको क्लास को फीचर्स को एक्सेस कैसे करेंगे आप। ठीक है, आपको उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी रेफरेंस वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक रेफरेंस वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। उसी रेफरेंस वेरिएबल से हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे आप। ठीक है, अब नीचे देखिए, अब मैंने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम क्या रखा? स्टूडेंट, कर्ली ब्रैकेट लगाया, इंट रोल नंबर के लिए, स्ट्रिंग नेम के लिए। अब यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नाम से जो क्लास है वो आपको यहाँ डिफाइन किया। S1 एक रेफरेंस वेरिएबल है यहाँ पर, न्यू एक हमारा ऑपरेटर है, और जो स्टूडेंट है ये हमारा कंस्ट्रक्टर है ये। ठीक है, अब मुझे एक्सेस करना है, जो स्टूडेंट के फीचर्स हैं उनको एक्सेस करना है। अब स्टूडेंट में देखिए ये जो स्टेट्स हैं, इसको मुझे एक्सेस करना है। अब तो इस जो एक्सेस करने के लिए क्या लिखेंगे? S1, ये जो S1 रेफरेंस वेरिएबल है, डॉट लगाएंगे, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से ही हम एक्सेस करेंगे हम। फिर लिखेंगे रोल, और यहाँ पर इक्वल टू और 55 जो वैल्यू हमें असाइन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं। यहाँ पर S1 डॉट नेम इक्वल टू मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर सेमीकोलन। तो ध्यान रहे यहाँ पर जितने भी लाइंस लिखेंगे आप, सबके बाद सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज के लिए यहाँ इतना ही, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और उस अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स I hope each and everything is very much clear to you, and whatever things I have delivered here, each and everything is understandable. Students, if you have any kind of query, any kind of problem, definitely you can get in touch with me. Okay, and don't forget to subscribe and like my channel. Okay students, so it's time to finish up this video, and we'll meet in next video with a new topic. Thank you so much for watching this video.